Namaskaram. I am here with Yogi Naveen to teach you a new session of meditation. It's called Vedic meditation. Before that, I want to start with a beautiful quote about meditation only from Bhagavad Gita. It says, when meditation is mastered, the mind becomes unwavering like a flame of a lamp in a windless place. Isn't it beautiful? But initially, I didn't understand the meaning of this. Then later on, when we carried our life, when we were walking through our life, I was working with different people, working with companies. Things were very different. But after this stressful, I won't call it stressful, but quite happening and happy life, but very active, very fast forward, very fast going life. Then I met Yogi Naveen. Then I met Shailendra Swami Saraswati. I met so many people, those who were from the background of meditation and yoga. Actually, meditation is a part of yoga, not everyone knows about it. So, it comes like from yoga, it comes asana, pranayama, then dhyan. So, there are like 8 elements of yoga. So, these are the 3 main elements that we are going to talk about today. And this is happening under the direction of, under the help of Professor Bharti Sharma, Madam Registrar, a very kind lady. So, for the students and the faculties and for everyone, this session is going on. So, we talk more about meditation. Life is very fast these days, and we need some mental relaxation during that. Everyone knows that physical workout is important, and we are getting that. We work out, we exercise, we do yoga. But what about mind? Not everybody understands its meditation's importance. So what does meditation do actually? When your body works out, if you don't do anything, you become lethargic, you get irritation, you get many physical issues, health issues. And then you have to work out, then you have to get your body into shape, then just get into some little activity to stay fit. But mind is totally opposite to that. Our mind doesn't stop, it keeps on going, keep on thinking. कुछ नहीं भी है, फिर भी हमारा दिमाग चल रहा है, हम सो रहे हैं तो भी दिमाग चल रहा है. Meditation is same as physical exercise. जैसे शरीर का जो व्यायाम है, मेडिटेशन दिमाग का व्यायाम है. जैसे हमारे शरीर को एक्टिव रहने की जरूरत है, वैसे ही हमारे दिमाग को रिलैक्स करने की जरूरत है. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग रेस्ट पे जाता है, राइट? अब ये बात तो सब समझते हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आवर माइंड गेट सम रेस्ट. So, this rest we can achieve through our Vedic meditation. Vedic meditation is coming from ancient ages. Many sages, there's so many people, senior people, they have this thing as a habit in their life. That's why they were so graceful, so poised, so peaceful, so calm. So we also want that, and specifically in this lifestyle, in this era, when everything is like, you understand the meaning of this. So, now I talk about Yogi Naveen. I met him few time back, like few months back. A person, a devoted person, a dedicated person, a determined person. A true combination of all 3. Always laughing, always enjoying. But he was never into this profession earlier. It's not a profession for him. It's like worship.
This is the art of living that he is doing, teaching yoga to everyone. He, by profession, by education, he is a senior engineer, coming from a small village, still going on his path, did his BTech, MTech, excelled, have done everything on his own. But yes, he is very blessed that everybody supported him, of course, but the struggle was through him. Then he worked as a contractor, excelling there too. Then he started working, he got really good job, started working with companies, again excelling. Then another thing is that he started his own business. Again you were excelling there. So excellence always been there with him, but with the question. एक query था हमेशा साथ में कि अभी भी कुछ कम है, there's something missing. उस मिसिंग चीज की पूर्ति करने के लिए शायद इन्होंने योगा शुरू किया. जैसे ही योग शुरू किया, he started feeling some changes inside, not just outside, inside. उन चेंजेस में से एक था किसी भी फील्ड में रह के, किसी भी काम में रह के एक संतुष्टि पाना, एक शांति पाना और हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहना. ये ही जिंदगी का सबसे मूल जिंदगी का जो है वो यही है. हर सिचुएशन में शांत रहना, खुश रहना. इन एवरी सिचुएशन दिस इज मस्ट. We have this question everywhere. I have so many friends, colleagues. I also myself traveled a lot and met so many people from different countries as well. So, but everybody has this question. They have everything, still they are not happy. They're complaining. So that complaining issue, that is with everyone, you can subside or you can get away with that question mark that's in your head. You can get in ease with it. You can actually have everything and you can actually feel it too. And there's a possibility if you still have nothing, if you don't have anything or something, you will still feel very happy about it. So that is Yogi Naveen. And more I tell him about him, a passionate person who's trying to teach everyone this peaceful, this beautiful art, trying to reach each and every person on his quest. He is here with us with PLC Supwa. So we are going to conduct this meditation session just for you guys. Please, now Yogi Naveen going to take things forward from here and we'll do this meditation technique. First he is going to tell us about the importance and then he is going to teach us the technique. Yeah. Yogi Naveen, please. नमस्कार सभी को। आज हम जैसे कि सपना ने बताया कि ध्यान का अभ्यास करेंगे और ध्यान के बारे में जानेंगे। इसको करने का सही तरीका क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और जो भ्रांतियाँ इसके बारे में फैली हुई हैं उनको अच्छे से समझ लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में 8 अंगों का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और बीच में एक प्रत्याहार आता है। तो यम और जब हम आचरण करते हैं तो यम नियम से हम अपने जीवन में सामाजिक बातें और अपने स्वच्छता और सफाई आदि के बारे में सीखते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं आसनों की, तो महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में
बहुत अच्छा सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरता के साथ सुखपूर्वक आप अपने स्थान पे बैठ के और लंबे समय तक अपने आप को रोक पाएं, उस स्थिति को ही हम आसन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो जब आसन में हम पूर्ण हो जाते हैं, लंबे समय तक बैठ पाते हैं, फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और प्राणायाम की जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने बताई है, श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदम इति प्राणायाम, कि जो हम श्वास प्रश्वास की जो ये गति के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं, यही प्राणायाम है। इससे हमारे प्राणों का आयाम हो जाता है, प्राणों की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार के बारे में बताया गया है कि आप अपनी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों को जब आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लेते हैं तो वो आपका प्रत्याहार है। उसके बाद आता है धारणा। जो आजकल ये मेडिटेशन की टेक्निक चली हुई है, जिसको गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है, ये एक्चुअल में एक धारणा है। धारणा का महर्षि पतंजलि ने लिखा है, देशबंद चित्तस्य धारणा, कि किसी एक देश में एक अपने चित्त को धारण कर लेना, वो धारणा है। और आजकल जो ये मेडिटेशन की टेक्निक जो चली हुई है लगभग सारी, वो आपको एक तरह से एक जगह पे, एक देश में आपको धारण करने के लिए बताते हैं कि आप अपने श्वास पे ध्यान दें, आप अपने मस्तिष्क पे ध्यान दें, भ्रुकुटी पे ध्यान दें, आप अपने कपालुंदर पे ध्यान दें, आप अपने नासिका के अग्रिम भाग पे ध्यान दें। तो ये जो धारणा, देशबंद चित्तस्य धारणा, ये जो धारणा है, इसमें हमें किसी एक जगह पे ध्यान धरना होता है। और आजकल की जो गाइडेड मेडिटेशन है उसमें यही बताया जाता है, जिसमें ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो मेडिटेशन का जो तरीका है वो कंसंट्रेशन है। और अगर हम देखें तो ठीक इसका विपरीत तरीका है, जिसमें हम कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन तो इसका परिणाम है। जब भी हम ध्यान करें और ध्यान करने के बाद जो हम दिन भर जो सारे काम करेंगे, उसमें हमारी कंसंट्रेशन बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे, उसका उद्देश्य है ये, ना कि ये इसकी प्रक्रिया में हम कहीं भी एकाग्र नहीं करेंगे। और ध्यान का अर्थ है मन का विश्राम। और एक बात तो यहाँ से साफ हो जाती है कि अगर आप किसी जगह एकाग्र करेंगे मन को, तो वो विश्राम कैसे करेगा। अगर मन का विश्राम हमें कराना है तो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, रेस्ट में छोड़ना पड़ेगा, उसको हम विश्राम दिलाएंगे। तो ये भ्रांति जो फैली हुई है कि आप वहाँ कंसंट्रेशन करें, आप अपना एकाग्र भ्रुकुटी में लगाएं, नासिका के अग्रिम भाग में लगाएं, वो बिल्कुल गलत फैली हुई है। और ये हुआ ये कि समय के चलते चलते जब हमारे वेदों में तो इस टेक्निक को, इन जो ध्यान की पद्धति है, इसको बड़े अच्छे से समझा रखा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदलती गई और वो एक जो है ना, कुछ साल पहले, कुछ बीते 200-400 साल पहले वो पद्धति बदल गई और उसकी वजह से ध्यान के परिणाम नहीं मिलते। लोगों का विश्वास उठ गया ध्यान से, कि ध्यान से तो कुछ भी नहीं होता, हम तो रोजाना ध्यान कर रहे हैं, हमें तो हमारी उल्टा तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो ये तकनीक के गलत होने के कारण ये सारी कमियां इसके अंदर आई। तो आज हम जो ध्यान की प्रक्रिया करेंगे उसमें हम इस तकनीक को सीखेंगे कि सही तरीके से कैसे किया जाए। और जैसे मैंने बताया कि ध्यान का जो अर्थ है वो है मन का विश्राम। और मन का विश्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी, अगर हम देखें, भगवान ने हमें ब्रेन तो सबको एक जैसा ही दिया है। अब आइंस्टाइन ने इतनी सारी खोजें कर डाली, न्यूटन ने इतनी खोज कर डाली, और दूसरे जो साइंटिस्ट हुए हैं, दिमाग तो उनका भी उतना ही था, मस्तिष्क तो उनका भी उतना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग नहीं कर पाए उसकी कमी क्या रही। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हम दिन भर जो काम करते जाते हैं, थॉट्स आते जाते हैं,
उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं तनाव के कारण, और ये गांठें हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को कम कर देती हैं, हमारी मन की एकाग्रता को भंग कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा ब्रेन, हमारा मन, मस्तिष्क उतना काम नहीं कर पाता है। और इस तनाव के कारण जब वो गांठें बनती हैं, अब हमें इन्हीं गांठों को खोलना है, इन्हीं को विश्राम में लेके जाना है। तो उसका ठीक रिवर्स है, आप तनाव का जो रिवर्स है वो विश्राम है। अगर आप इनको विश्राम में लेके जाएंगे तो ये दोबारा से खुल जाएंगी और हमारा ब्रेन, हमारा मन, मस्तिष्क अच्छे से काम करने लगेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम एक मंत्र का सहारा लेंगे, और मंत्र का अर्थ ये है कि हम इसमें जो मंत्र हम लेंगे वो रहेगा राम। राम की जो साउंड है उसमें 2 अक्षर निहित हैं, वो है र और मैं। अब यहाँ र का क्या अर्थ है और मैं का क्या अर्थ है? अब ये जो र है, आपने देखा होगा कि जब जो कारपेंटर होता है, जब वो लकड़ी के ऊपर अपने रंदे को चलाता है ऐसे, तो र की साउंड आती है। मतलब वो जो गांठें बनी हुई हैं, जो उबड़ खाबड़ जो चीज़ बनी हुई है, वो उसको हमें पहले घिसना है अच्छे से, और फिर उसके ऊपर म की साउंड का अर्थ होता है ममता से, मरहम से। वो उसके ऊपर हम उसको मरहम लगा देते हैं और स्मूथ हो जाती है। और जैसे जैसे वो सरफेस हमारा ऊपर से जो रफनेस थी वो हट गई और उसको हमने पॉलिश कर दिया और स्मूथ हो गया और वो अंदर से गांठें खुल गई, तो हमारे जीवन के अंदर वो मानसिक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा जो भ्रम है वो राम को लेकर, या फिर ये वो राम नहीं है कि सीता का पति राम या दशरथ का पुत्र राम है, और हो सकता है कि उनको इस राम शब्द की डीप नॉलेज हो, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को लेकर अपने बेटे का नाम दशरथ ने रख लिया हो। जो राम है वो हमारे ही मन का कहीं ना कहीं गहरा रूप है, हमारी ही आत्मा का गहरा रूप है। और जब गहरा रूप, जैसे परम हमारा कोई जो मित्र होता है, परम मित्र होता है, तो उसका मतलब है वो हमारा गहरा मित्र है। तो ये जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो ये आत्मा का ही गहरा रूप है। जब हमारी ही आत्मा के जब हम गहरे रूप में जाते हैं तो वो हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, हम परमात्मा के साथ लिंक जोड़ते हैं। तो ये जो राम है, राम की ध्वनि हमें अपने उस गहरे लेवल के साथ कनेक्ट करेगा, उस परम आत्मा के साथ हमें कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो तीन जो इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे, साथ साथ आप भी अभ्यास करेंगे और हम आपको साथ साथ कराएंगे। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन इसकी जो आती है वो है कि बैठने का तरीका क्या हो। आजकल जो भी ध्यान की पद्धतियां हैं या आजकल जहाँ भी एक चीज़ें करवाई जाती हैं, तो ये बताया जाता है कि आप पद्मासन में बैठें, आप ये मुद्रा लगाएं, आप ये ऐसे करें। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में सीधी सी डेफिनेशन दी है, स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरता के साथ सुखपूर्वक आप लंबे समय तक जहाँ बैठ पाएं वही आसन है। तो आप बैठने का जो स्थान रहेगा वो बिल्कुल आप आरामदायक जिस भी स्थिति में हो आप बैठ सकते हैं। आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप अपने बेड पे बैठ सकते हैं, या आप किसी जगह कमर लगा के दीवार के साथ भी बैठ सकते हैं। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन रहेगी। और दूसरा क्या है कि जो हम विश्राम करने का जो अगर हम बात करें तो विश्राम का ये रहेगा कि भाई विश्राम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सो के भी विश्राम कर सकते हैं, है ना। तो नींद लेके भी आराम से हम विश्राम कर सकते हैं। तो इस विश्राम में क्या खास बात है, तो इसका अगर एक पैमाना इसके ऊपर रिसर्च हुई कि भाई इस जब हम तकनीक को करते हैं ध्यान की को, तो किस तरह का रेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है। तो अगर मान लो हम 100 यूनिट रेस्ट की माने
तो 100 यूनिट में से जब हम ये गहरी नींद लेते हैं 8 घंटे की, तो उसमें लगभग 8% ही हमें विश्राम मिलता है। 100 से जैसे 99, 98, 96 और लगभग 92 तक, मतलब 100 यूनिट अगर रेस्ट के हम माने तो उसमें से केवल 8% रेस्ट ही हम गहरी नींद के बाद ले पाते हैं। मतलब हम 8 घंटे सोए, गहरी नींद आई, और जब वो 8% रेस्ट जब होता है हमारा, और जब हम सुबह उठते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। और इस टेक्निक से, इस ध्यान की प्रक्रिया से ये पाया गया कि ये जो रेस्ट है ये 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है। ये पाया गया कि ये 18% हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। योगी जी, एक सवाल है जी। जैसे आपने कहा कि सुबह उठते हैं तो बहुत रिजुविनेटेड, फ्रेश, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, पर आजकल ऐसा नहीं है। मेरे भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं भी ऑफ कोर्स सिखाते हूँ, तो आई नो सब यही सवाल करते हैं कि सुबह भी थके हुए, इतना मतलब दे फील लेथार्जिक ऑल द टाइम। सोते उठते ही उनको ऐसा लगता है बहुत ही थका हुआ, जैसे कि पता नहीं अभी काम किया है, नींद लिया ही नहीं है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गया है, तो ये मेडिटेशन हमको। बहुत सही, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि जो ये सुबह सुबह जो थकान होती है, मैंने जब आपको बताया कि जो 8% का जो ये रेस्ट होता है ये गहरी नींद के बाद होता है, और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, मानसिक तनाव बढ़ने के कारण से वो रेस्ट उतना भी नहीं हो पाता है, हम 8 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, सुबह जब आप उठते हो तो आपको उठने का मन नहीं करता है, और उठने के बाद फिर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी एकाग्रता नहीं बनती है। तो इसके लिए ये सबसे अच्छी तकनीक है, आप रोज़ाना सुबह शाम ध्यान करें, उससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप अपना विश्राम ज़्यादा कर पाएंगे और मानसिक कार्यों को आप अच्छे से कर पाएंगे, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तकनीक का जैसे हमने पहला नियम तो ये बताया कि आपको बैठना कैसे है। दूसरा हम अभ्यास करेंगे कि ये जो राम जो वर्ड हम मंत्र यूज करेंगे, इसको बोलना कैसे। बचपन से ही अगर हम देखें तो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बहुत समझाया है, और हमने कहते भी सुना होगा कि राम के नाम लिया करो, राम के नाम लिया करो। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो राम का नाम लेना कैसे है। वही टेक्निक है, वही आज हम सीखेंगे कि इसमें हम इस मंत्र का कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे हमारे उन मस्तिष्क के अंदर जो छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं उनको खोलेंगे, उनका विश्राम कराएंगे और अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर हम राम का प्रयोग जब हम कर रहे हैं, मान लो हम किसी दूर बैठे आदमी को हम बुला रहे होते तो हमें तेजी से बोलना पड़ता है, और वही आदमी थोड़ा सा हमारे और नज़दीक हो तो हमें थोड़ा सा और आराम से बोलना पड़ता है, और वो बिल्कुल मेरे समीप ही बैठा हो, मेरे बगल में ही बैठा हो तो उसको मुझे और आराम से बोलना पड़ता है। अगर वही चीज़ मेरे अंदर ही हो तो मैं जब बोलूँगा तो मन ही मन में बोलूँगा, वो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आएगी। तो इसी तरह का प्रोसेस है इसमें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगी बीच में, और जैसे जैसे होगा हम आपको सिखाएंगे। शुरू में हम इसको टुकड़ों में सीखेंगे और उसके बाद हम पूरा कंप्लीट 20 मिनट तक अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आप बोलेंगे 3 बार, राम राम राम। राम राम राम। फिर थोड़ा सा नज़दीक हमारे कोई जैसे है, हम उसको बोलेंगे राम राम राम। राम राम राम। अब मान लो बिल्कुल मेरे बगल में ही है, या फिर जैसे हम परीक्षा में फुसफुसाते हैं वैसे ही हम बिल्कुल राम 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 राम। और मान लो हमें किसी को ऐसे मोनो एक्टिंग करके दिखानी हो, और किसी बस होठ हिलाने हो, मतलब हमारे केवल सांकेतिक भाषा का अगर मान लो कोई समझने वाला हो उसको दिखाना हो तो केवल होठ हिलाएंगे अब की बार। अगर इससे भी धीमी गति से अगर बोलना हो तो उसको हम कैसे बोलेंगे? उसको हम मन ही मन में बोलेंगे। तो
जैसे ही मैं कहूँ कि आपको आंखें बंद करनी है तो आप आंखें बंद करेंगे और मन ही मन में राम को बोलेंगे। चलिए, आंखें बंद करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। आंखें खोलिए। तो जब हम इसको मन ही मन में इसका उच्चारण करते हैं, राम का इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इसका उच्चारण बदल जाता है। उच्चारण में कभी आप कभी रा की साउंड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे घर्षण ज़्यादा है। उसमें पहले उसको रंदे से साफ करना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसके बाद तो इस तरह से उसका उच्चारण बदल जाता है। बिल्कुल। और कई बार इसकी स्पीड बदल जाती है, गति बदल जाती है। जैसे हम राम 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 राम, कभी ये हो सकता है तो ध्यान रहे, अगर इसकी गति बदलती है तो भी बिल्कुल ठीक है, इसका उच्चारण बदलता है तो भी बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे और मन में मंत्र का उच्चारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो जैसे कि बताया हमने, इस जो राम मंत्र का जो है उच्चारण बदल सकता है, इसका गति भी बदल सकती है, और कई बार तो ये भी हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा छूट ही जाए। जैसे आपने बोलना शुरू किया रा, और वो चलते चलते मैं छूट ही गया। तो अगर ये ऐसे छूट भी जाता है तो भी बिल्कुल सही है, और कई बार आगे वाला हिस्सा भी छूट जाए, जैसे हम रा छूट ही जाता है और मैं केवल रह जाता है, तो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर गति में वेरिएशन आए, आपको उच्चारण में कुछ चेंज आए, या फिर कुछ हिस्सा छूट ही जाए, तो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको करते जाएं। चलिए एक बार फिर से आप। तो इसमें योगी जी ये डायरेक्शंस भी अगर मतलब एक जैसे बैठे हैं तो चेंज कर सकते हैं अगर आप? हाँ, बिल्कुल सही बताया। जैसे हमने शुरू में ही किया कि बैठने का जो तरीका रहेगा, बिल्कुल आप आराम से बैठ सकते हैं, और बीच में चाहें तो आप अपनी पैरों की स्थिति, हाथों की, या कोई मक्खी या मच्छर बैठ जाए तो उसको भी हमें हटाना है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो हमारा ध्यान वहीं पे रहेगा। पैर में अगर बैठे बैठे अगर दर्द होने लगा तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा। तो आप आराम से कंप्लीटली बिल्कुल पैरों को लटका के आराम से बैठ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट, फिर से आंखें बंद कर लेंगे और
खोलेंगे। अब एक और चीज़ बीच में आती है, वो है नींद। कि जब हम इस तरह से ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो इसमें दो चीज़ें विशेष रहेंगी। एक तो ध्यान रहे कि आपको पीछे सिर लगा के नहीं बैठना है। जहाँ भी आप कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे, सिर आपका पीछे ना लगे। और उसके पीछे कारण ये है कि अगर सिर पीछे लग गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आप सो जाएंगे और लंबे समय तक सो जाएंगे। इसमें यह है कि बाई चांस आपको नींद आ भी गई तो ऐसे झटका लगेगा और ऐसे एकदम से आप थोड़ी देर के बाद जो 5-7 सेकंड या 10 सेकंड का जो ऐसी नैप आएगा, उसके बाद एकदम से आपको यूँ महसूस होगा। तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना। जब भी आपको यूँ लगे कि भाई हाँ मुझे नींद आ गई थी और मैं तो ध्यान कर रहा था, तो हल्के से गर्दन को ऊपर उठाना है और गर्दन को सीधे करते हुए फिर से अपना मंत्र का उच्चारण अंदर ही अंदर हम करने लग जाएंगे। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं इस व्यस्त जीवन शैली में हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हम समय पे सो नहीं पाते हैं और कई बार जल्दी उठना होता है, हेक्टिक शेड्यूल है, तो उसकी वजह से ये नींद का बैकलॉग रह जाता है। और जब भी हमारा शरीर और मन विश्राम में जाता है तो नींद अपना काम पूरा करने की कोशिश करती है और वो नींद आपको आने लग जाती है। तो अगर नींद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे सिर नहीं लगाना है, बस आगे नींद आ जाए और यूँ आगे की तरफ आप झुक जाएं तो थोड़े से जैसे ही वो नींद का जो गहरा लेवल है वो जैसे ही कम होगा, एकदम से आपको यूँ पता लगेगा कि गर्दन आगे की तरफ चली गई था। उसमें आपको झटके से भी गर्दन को नहीं उठाना है, बिल्कुल आराम से जैसे आप इस स्थिति में हैं तो धीरे धीरे उस गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने कंधों पे लेके आएंगे और फिर से हम वही अपने मंत्र का उच्चारण शुरू कर देंगे। चलिए एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे और अंदर ही अंदर उच्चारण करेंगे मंत्र का।
तो अब तक हमारी इंस्ट्रक्शन हुई कि बैठना कैसे है, खूब आराम से बैठना है और बीच में अगर हाथ पैर हिलाने का मन करे या फिर आपको मक्खी या मच्छर भी बैठ जाए तो उसको ठीक कर लेना है। दूसरा हमने कहा कि उच्चारण में अगर कुछ वेरिएशन आए तो वो भी परफेक्टली राइट। तीसरा हमने कुछ गति को लेकर मंत्र का अगर गति कम या ज़्यादा हो रही है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा जो हमने बताया कि अगर नींद आ जाए तो नींद भी आने दें और जैसे ही आप नींद से थोड़ा सा कम हो तो आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और बैठ जाएंगे। अब मुझे तो योगी जी अभी एक नींद का झटका आ गया। इट्स सो इफेक्टिव। बहुत बढ़िया। ये इसका शुरू में ही जब आप करने बैठेंगे तो पहले ही इसका आप देखेंगे अगर नींद का कोई बैकलॉग रह गया तो उसी टाइम आपको सबसे पहले नींद आ सकती है। ये स्वाभाविक है और ये अच्छा भी है। और अंतिम जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो ये है विचारों को लेकर। विचारों को लेकर लगभग भ्रांति रहती है कि अगर विचार आए तो क्या करें, और कंटिन्यूअस विचार आते रहते हैं। आजकल तो अगर हम देखें तो इस तनाव भरे माहौल में कंटिन्यूअस एक चैन चलती रहती है अनवांटेड थॉट्स की। पीछे बैकग्राउंड में एक जैसे फिल्म चल रही है, जैसे फिल्म चल रही हो। हम किसी से बात कर रहे हैं तो पीछे एक विचार चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो पीछे विचार चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो पीछे विचार चल रहे हैं। तो इन विचारों का इतना अधिक गतिवान होने के कारण हमारे मन की एकाग्रता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो विचारों को लेकर जब जो भ्रम फैले हुए हैं कि भाई विचारों को रोकना है या विचारों को दबा देना है, जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की जो परिभाषा बताई है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों को रुकने देना ही योग है, ना कि रोकना योग है। हम चित्त की वृत्तियों को रोक नहीं सकते हैं। हम उनको ये कर सकते हैं कि भाई उनको ढीला इतना छोड़ देंगे कि वो अपने आप पहले आएंगी और फिर धीरे धीरे अपने आप ही उनके अंदर ठहराव आ जाएगा। जैसे किसी बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया और वो धीरे धीरे जितनी गति तक जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जब वो अपनी ऊंचाई तक जाएगी फिर अपने आप शांत होती जाएगी और आपके विचार भी ऐसे ही शांत होते जाएंगे। और ये जो विचार जो आते हैं इस दौरान, ये विचार असल में आ नहीं रहे होते, ये विचार जा रहे होते हैं। जैसे मान लो किसी कमरे में आंधी आई और कमरे में धूल जम गई फर्श के ऊपर। अब जब शुरू में तो जो आंधी आई और उसके अंदर जो वो धूल जमी हुई थी वो आई थी और उसके कारण वो धूल जम गई। जब मान लो उसको हम साफ कर रहे हो, उसकी सफाई कर रहे हो, तो उस दौरान भी वो जब हम झाड़ू से उसको साफ करेंगे तो क्या है, वो धूल फिर से उठेगी। लेकिन अब की बार जो धूल दिखाई दे रही है वो जा रही है, वो सफाई का काम हो रहा है। पहले जो धूल आई थी वो गंदगी इकट्ठी हो गई थी, अब जो धूल आई है वो सफाई का काम हो रहा है। और जो विचार हमारे जो आ रहे होते हैं असल में ये जा रहे होते हैं। बहुत सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं हमारे मन के अंदर और वो हमारी कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। तो अगर विचार भी आए तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर विचार आए तो विचारों को आने दें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने मंत्र को तो तरफदारी करना है कि जहाँ कहीं मंत्र अगर छूट जाता है तो मंत्र को दोबारा से लेके आना है। विचार आए तो आने दें। कई बार ऐसा होगा कि आपके विचार ज़्यादा चल रहे होंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपका मंत्र ज़्यादा चल रहा है और कई बार तो विचार ही विचार चल रहे हैं। अगर विचार ही विचार चल रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक है, और अगर मान लो मंत्र चल रहा है तो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो विचारों का जो आना ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल परफेक्टली राइट है। आएंगे ही आएंगे विचार, क्योंकि बहुत सारा एक्यूमुलेशन उनका हो गया है बीते समय के बाद। क्योंकि जब भी हमें कोई आहत होती है, दुख पहुंचता है, तो ये विचार कहीं ना कहीं ऐसे गांठें बना लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर और ब्लॉकेज बना लेते हैं। तो इन विचारों को
हमें आने देना है, निकलने देना है, ये सफाई की प्रक्रिया है, इसको होने देना है। सपना कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। किस तरीके के विचार आएंगे? जैसे नॉर्मली क्या होता है, कई बार क्या होता है रेगुलर विचार आते हैं, या कोई डीप थॉट या एनीथिंग बैड हैपेंड इन लाइफ, पास्ट लाइफ, कुछ इस तरीके के विचार रहेंगे? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रैंडम विचार आते हैं, और अब तो बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। तो हाँ, ये सही कहा इन्होंने कि मान लो जैसे कई बार तो ये हो सकता है कि आपको जब सपने भी अगर जब आते हैं तो वो भी एक सफाई की ही प्रक्रिया है। कई बार सपनों में आपको बचपन की जो वो चीज़ें जो ज़्यादा आहत करने वाली या ज़्यादा जो अटैच करने वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा दिखाई देती हैं, या फिर जो परेशान करने वाली कोई बार जो चीज़ें होती थी, जो डरावनी चीज़ें होती वो आपको परेशान भी करती हैं और वो निकल रही होती हैं सपनों के द्वारा। तो ठीक ऐसे ही इस प्रक्रिया में जब हम करेंगे ध्यान की, तो इसमें कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डीप पुरानी जो स्ट्रेस जो दबी हुई थी वो जब खुलेगी तो आपको हो सकता है कि पुराना भी कोई थॉट आ जाए। लेकिन ज़्यादातर क्या रहेगा कि आपको रोजाना के जो थॉट्स हैं, जैसे हम दिन भर जो सारा कार्य किया हमने, वही रैंडम थॉट्स, वही थॉट्स हमारे बाहर निकलेंगे। ये वैसे ही है जैसे एक सतह के ऊपर खूब सारे बुलबुले हैं, और एक डीप बुलबुला अगर नीचे से अगर कोई बबल नीचे से निकल के आए तो वो ऊपर आते आते वो किसी बड़े बुलबुले के साथ ही मिल के और फिर बाहर निकलता है। तो वो जो स्ट्रेस नीचे से निकलेगी वो स्ट्रेस भी उस जो ऊपर की सतह पे जो भी बात है या जो विचार है, जो थॉट्स हैं, उसके साथ मिल के वो निकल जाएगी। तो इसमें हो सकता है कि कई बार आपको डीप और पुराने थॉट्स भी आ जाएं, कई बार हो सकता है कि रैंडम थॉट जो चल रहे हैं वो भी आ जाए। लेकिन जैसे भी आए आप आने दें और उनको उनके बारे में सोचे नहीं। आप बस इतना करेंगे कि आपको मंत्र साथ साथ बोलते जाना है, राम को साथ साथ बोलते जाना है। और ये कई बार मंत्र छूट जाता है, तो जब भी आपको ध्यान आए कि ओहो मैं तो ध्यान कर रहा था और ध्यान कर रहा था, तो वो मंत्र का उच्चारण करना है, तो साथ साथ आप मंत्र को बोलना शुरू कर देंगे। या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके विचार भी ना आए और मंत्र भी ना आए, तो वो समय कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वो स्थिति आती है जिसे वो परम आनंद कहते हैं। और हमें इच्छा नहीं करनी है इसकी, हमें इच्छा नहीं करनी है, हमें तो प्राकृतिक अपना जो है नेचुरल स्वभाव से, भोलेपन से हमको करना है। जैसा भी होएगा वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। अगर हम ज़्यादा विचार आए तो भी अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा सफाई हो रही है, इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ गलत हो रहा है। अगर ज़्यादा विचार आ रहे होते तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से ज़्यादा सफाई हो रही है। कम आ रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि भाई हमारी सफाई हो गई है, अब थोड़ा सा कम सफाई हो रही है। ठीक है, तो अगर विचार आए या फिर उनके साथ मान लो मंत्र का छूट जाना और ये सारी चीज़ें, अगर जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। बस आपको आंख बंद करके और मन ही मन में राम राम बोलते जाना है। चलिए, अब ये अंतिम हमारी लगभग सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, और एक बार हम लास्ट में एक बार करेंगे, और उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे या क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसका समापन करेंगे। चलिए, एक बार अंतिम आंखें बंद करेंगे और मन ही मन में मंत्र का उच्चारण करेंगे।
धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे और खूब अंगड़ाई लेंगे। तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, 2-3 बार सो चुका हूँ मैं इसमें। बहुत बढ़िया। तो आप इस तरह से दोनों टाइम 20-20 मिनट ध्यान कर सकते हैं। अब तो हमने जैसे टुकड़ों में किया, और आपको बिल्कुल लगातार करना है। किसी भी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को आप इसका अभ्यास करेंगे। और एक विशेष ध्यान रहे, अगर आपको इसको करना है सुबह और शाम, तो खाने से पहले करने की कोशिश करें। और जो हम शाम का जो ध्यान हम जब करेंगे, जैसे मैंने बताया कि इसमें सफाई होती है अच्छे से, तो जो शाम का हम ध्यान करेंगे उसमें हम दिन भर जो हमारे विचार आएंगे वो साफ़ हो जाएंगे। अब अच्छी नींद ले पाएंगे और अगले दिन हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और जो सुबह का जो हम ध्यान करेंगे उसमें हम और गहराई में जा पाएंगे अच्छे से, और दिन भर जो भी हमारा काम रहेगा उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सुबह शाम आप 20-20 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। आप दिन में भी कभी अगर आपको टाइम लगे तो 20 मिनट कहीं भी अपना बैठ के और ये ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम एक ग्रुप बना दें आपका मेडिटेशन का, सुपुआ के नाम से ही, और उस ग्रुप में आप अपनी अटेंडेंस भेज सकते हैं। जैसे आपने अभी एक किया तो 1 अटेंडेंस हो गई, फिर शाम को किया तो 2, फिर अगले दिन 3। इससे ये है कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख पाएंगे, और साथ ही साथ हमें भी यूँ पता लगता रहेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर इस बीच आपको कोई परेशानी आती है, कोई और कुछ आपका प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। अब सपना भी अगर कुछ पूछना चाहे। खाने का मतलब लॉजिक योगी जी, कैसे खाने का? अगर पहले खाया है मतलब कि ऑब्वियसली कि मतलब कि उसके बाद अगर खाना खाया तो 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, तो उसके बारे में और व्यूअर्स खाने के बारे में ये माना जाता है कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हम जब ध्यान करते हैं तो श्वास की गति धीमी हो जाती है, और वो धीमी होते होते इतनी धीमी हो जाती है कि कई देर में एक श्वास आता है। उससे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो कम हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के कम होने के कारण जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो तुरंत आप खाना खा के इसको ना करें। अगर तुरंत खाना खाते ही आप इसको करते हैं तो हो सकता है आपको ढकार या उल्टी आ जाए। तो खाना खाने से पहले इसको करना चाहिए। खाने के पीछे यही लॉजिक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा आज हमारा वैदिक मेडिटेशन का सेशन, आई होप आपको वो अच्छा लगा हो। और हम इसको आज जैसे पीसेस के अंदर किया, टुकड़ों में किया, नेक्स्ट टाइम हम पूरा एक साथ करेंगे। और आप सुबह शाम दोनों टाइम रहें, घर में हेल्दी रहें, अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देते रहें। उसी के साथ हम कहते हैं थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ PLC सुपुआ। ओम नमस्कारम। हैव अ गुड डे एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ।